مسجد کو دیکھیں، ہندوستان میں جہاں مسجد تھی وہاں مندر بنا دیا گیا ہے، اور وہاں کی عدالتیں بھی ڈٹھائی اور بے حیائی سے وہ بین الاقوامی قوانین کو پس پشت رکھ کے وہاں وہ بھی ہندوتا کو فروغ دے رہی ہے۔ اور یہ سیکولر انڈیا کا جو رٹ لگاتا تھا مودی، آج وہ ہندوتا سیدھا جو ہے وہ وہاں راج کام کر رہا ہے، اور مسلمانوں کو وہ وہاں جس انداز سے اذیت اور کرب سے مسلمان گزر رہے ہیں، ہم مسلم امہ کے ساتھ ہیں، وہ دنیا میں جس جگہ ہے۔ اور فلسطینیوں کا بھی دیکھیں، جو وہاں بھی ایک جو ہے بلکہ صفایا کیا جا رہا ہے وہاں ہمارے فلسطینیوں کا، اس پہ بھی مسلم امہ کی بے حسی، اور مسلم امہ کی سوائے ایک دو ممالک کے، یعنی 54 ممالک میں سے جو ہے وہ 2 ہی ملک ایسے ہیں جو ان کے ساتھ ہم یکجہتی دکھا رہے ہیں، اور اگرچہ وہ امریکہ کی یلغار کے تابع بھی آ چکے، لیکن انہوں نے ایک مسلمان ہونے کا اور صحیح جو ہے ثابت کیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آج یہ بین الاقوامی ضمیر کو جگانا پڑے گا۔ آج بین الاقوامی ضمیر کدھر ہے، سو گیا ہے؟ کیا یہ کرسچن اگر کسی ایریا میں ہوتا تو کیا وہاں بھی ان کا یہی طرز عمل، یہی ایٹیٹیوڈ ہوتا جو وہ فلسطینیوں اور کشمیریوں میں جو ہے نسل کشی کے ساتھ بے حسی اور خاموشی کے ساتھ سائیڈ کر رہے ہیں؟ ادھر یہاں ہندوتا کی کر رہے ہیں اور وہاں یہودی اسرائیل کی کر رہے ہیں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج مسلم امہ کو یکجا ہو کر OIC کو فعال کردار ادا کرنا چاہیے، اور پاکستان کو ایز اے فور رنر، ایز اے فرنٹ لائن سٹیٹ جو ہے یہ کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ پاکستان واحد ایک اٹامک پاور ہے جو دنیا میں مسلمان ملکوں میں جو ممالک میں سے ہے۔ سو ہماری افواج پاکستان بھی آج دنیا کی 5ویں جو ہے مضبوط ترین اور ماشاءاللہ عددی برتری رکھتی ہے، اور جتنی ہارڈنڈ اس وقت ہماری افواج پاکستان ہے وہ بھی اس چیلنج سے، ہر چیلنج سے نبرد آزما ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں کسی سے جو ہے معذرت خواہاں انداز میں ہمیں نیچے لگ کے یا جو ہے ہمیں معذرت کرتے ہوئے ضرورت نہیں ہے۔ آئیں، اوپنلی کریں، پاکستان کی عوام آپ کے ساتھ ہے۔ آپ ڈپلومیٹک لیول پہ کریں، آپ OIC کی لیول پر کریں، آپ مسلم امہ کو اکٹھا کر کے بین الاقوامی سطح پر جائیں، آپ اس کو انسسٹ کریں، اصرار کریں کہ یہ جو 5 فروری 1949 کی قرارداد تھی یونائٹڈ نیشنز پر کی، اس پر عمل کیا جائے۔ یہ آج جو ہے 2024 میں اب سوشل میڈیا کا، اب گلوبلائزیشن کا، اب ایک گلوبل ولیج ہے دنیا میں۔ سو اس لیے کہیں بھی انسان کا خون رس رہا ہو تو وہ سارا جسم جو ہے وہ بے چین ہونا چاہیے۔ ہمارا ایک گلوبل ولیج کے ناطہ سے ایک جسم کے مانند ہماری دنیا ہے، اور جسم کے کسی حصے میں بھی اگر خون رس رہا ہو، تکلیف ہو رہی ہو، اس کو ظلم کیا جا رہا ہو، اس پر تشدد کیا جا رہا ہو، تو میں سمجھتا ہوں ساری انسانیت، ساری دنیا اور سارا اس جسم پر جو ہے وہ ایک ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے کہ جس سے تمام جسم جو ہے وہ زائل ہو سکتا ہے۔ سو آئیے ہم دنیا کو بچائیں، دنیا کو خوشحالی کی طرف لے کے جائیں، ہم نفرتوں کی سیاست کو ختم کریں، اور ہم معاملات کو، یونائٹڈ نیشنز کو بھی چاہیے کہ پرو ایکٹیولی جو اپنا قرارداد کرتی ہے اس پر عمل بھی کروائے۔ فلسطین میں اگر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس فیصلہ دیتی ہے تو اس پر عمل داری بھی کروائی جائے۔ سو ان الفاظ کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ آج یوم کشمیر پر ہم کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں، ہم انہیں یقین دلانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کا بچہ آپ کے ساتھ ہے، ہمارے خون کے آخری قطرے تک ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور ہمارا آپ کا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس لیے ہمارے آپ کے رشتے میں جو ایک تقدس ہے، ایک متفقہ چیز ہے، اللہ کی رسی کو ہم مضبوطی سے تھام کر ہم بلا خوف و خطر کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ہمارے نزدیک سپر پاور نہیں ہے، وہی ایک سپر پاور ہے، اللہ کی ہے۔ اس لیے ہمیں کسی طاقتور سے یا کسی ایسے اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اسلحے میں یا عددی برتری ہے افواج میں، اور اس لیے ہم کوئی کم تر ہیں۔
अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान और मुसलमान उम्मा जो है, मुस्लिम उम्मा, वो इतनी ताकतवर है, उनके पास इतने वसाइल हैं कि वो दुनिया के हर तशद्दुद और हर यलगार पे वो जो है उस पर जो है अपना उसको कवर कर सकते हैं और उस पर जो है वो अपना मुसल्लत हो सकते हैं। अब आ जाइएगा, मैं ये तो बुनियादी तौर पर आज के 5 फरवरी के नाता से मैंने ये पैगाम देना था आपके तवस्सुत से पूरी उम्मा को, पूरी कौम को, और ख़ुसूसन कश्मीरी और फ़लस्तीनी हमारे जो मज़लूम भाई और बहनें और बच्चे और बच्चियां हमारी वो तकलीफ़ में, अज़ियत में, कर्ब में जो उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, हम उनके साथ हैं, उनकी दिलों की धड़कन के साथ हैं, उनके गम में हम बराबर के शरीक हैं। और इंशाअल्लाह जब तक उनको आज़ादी नहीं मिल जाती है तब तक हम चैन से इंशाअल्लाह नहीं बैठेंगे। और पाकिस्तान हमेशा उन क़ुव्वतों का भी यहाँ हम मज़म्मत करते हैं जो हिंदुस्तान या फ़लस्तीन की तरफ नरम गोशा रखते हैं, बिला इन मसाइल को हल किए बिना। बिल्कुल होना चाहिए। हम ये नहीं कहते हैं कि हम किसी के साथ हालत जंग में जाना चाहते हैं या जंग करना चाहते हैं। हम समझते हैं हर चीज़ का, हर मसले का हल जो है वो गुफ्त शुनीद से है, हर मसले का हल मसालियत से है, हर मसले का हल भाईचारा से है, हर मसले का हल करारदाद जो भी यूनाइटेड नेशंस में हुई है, जो बाला तरीन एक बैनुल अक़वामी अदारा है, उसके ताबे होना चाहिए। सो इसलिए इसमें जो है पहले ही बहुत देर हो चुकी है और कई नस्लें इस दौरान में आ चुकी हैं और कई नस्लें जो है उनका नुकसान भी हो चुका और कई बहुत सारे जो है जानें ज़ाया हुई। और इस्लाम मुसलमान होने के नाते से हमारा ईमान है कि एक शख्स का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। सो जो भी कत्लगरी यहाँ की जा रही है कश्मीर में या जो भी रवा की जा रही है फ़लस्तीन में, वो इंसानियत का कत्ल है। और चूँकि इंसानियत जो है एक ग्लोबल विलेज के तौर पर इस वक्त आ चुकी है हमारे सामने, सो इसलिए दुनिया सारी के लिए ये लम्हा फ़िक्रिया है और दुनिया सारी के ज़मीर को हम झंझोड़ते हैं कि खुदारा इस मसले का पुरअमन तरीके से हल करें। ये ना हो कि फिर तीसरी जंग इस दुनिया पर मुसल्लत हो और वो सफाया हो, वो नुकसान हो, क्योंकि इस वक्त एटॉमिक पावर्स आ चुकी हैं और हमने देखा पहले भी जितना इंसानियत का नुकसान होता है। अब आइएगा इलेक्शन के बारे में। देखें, इलेक्शन जिस हलके में आप बैठे हुए हैं, पहले मैं इस हलके से ज़रा शुरू होता हूं और फिर मैं आपको बताता हूं कि ओवरऑल पाकिस्तान में क्या इस वक्त नक्शा उभर रहा है और क्या इस वक्त किया जा रहा है। मेरे इस हलके में NA 122 ये जो है जिसमें मैं एक उम्मीदवार हूँ, इसमें पहले तो जो पोलिंग प्लान बना था उसमें उसको रद्द बदल किया गया किसी मखसूस हिदायत के तहत। और माशाअल्लाह जिनको वो ज़िले सुबहानी को ताजपोशी के लिए लाए हैं, उनके उम्मीदवार की हुक्मनामे पर और उनकी इंस्ट्रक्शंस पर उनसे बैठकर पहले तो हल्का बंदियाँ की गई हैं। उसके बाद हल्का बंदियों से ये हुआ कि फिर रिटर्निंग ऑफिसर्स और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स और पोलिंग ऑफिसर्स मनपसंद लोगों को बनाया गया है, मनपसंद लोगों को बनाया गया है। फिर वो मुस्तकिलन उनके साथ जो है गुफ्त शुनीद में है और पूरी प्लानिंग कर रहे हैं, जो अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या करने जा रहे हैं। और फिर जो उनको नज़र आया कि 60,000 वोट यहीं जिस जगह पर आप बैठे हुए हैं, यानी DHA डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी में 60,000 वोट है, जो वोट वो जानते हैं कि वो माशाल्लाह बहुत पढ़ा लिखा, बाशऊर और वो ऐसा है कि ना वो झुक सकते हैं, ना उनको मरूब किया जा सकता है, ना उनको लालच दी जा सकती है, क्योंकि ये माशाल्लाह ऐसा इलाका है जहाँ वो कोई पुलिस या किसी से डरने वाले नहीं हैं। या वो रिटायर्ड फ़ौजी हैं या वो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं या वो मुतमव्वल तबका है जो खानदा है, पढ़ा लिखा है और बहुत ही बाशऊर तबका है। सो उनको जब उन्होंने देख लिया कि ये 99% लोग जो हैं ये बाशऊर हैं, ये मेरिट पर अपनी मर्ज़ी, अपनी ज़मीर, अपनी सोच, अपनी फ़हम, अपनी फ़रासत के मुताबिक वोट देंगे, जो उनके ख़िलाफ़ जाएगा
नज़र आ रहा है उनको, रिटर्न ऑन द वॉल है, जहाँ जहाँ गए हैं उनको इतना बड़ा बिग नो का जवाब मिला है। तो उन्होंने क्या किया कि माशाअल्लाह मियाँ को एक पोलिंग स्टेशन में डाल दिया, बीवी को दूसरे पोलिंग स्टेशन में डाल दिया, बच्चों को तीसरी पोलिंग स्टेशन में डाल दिया। मुलाजिम तो खैर जो जिस हल्के के हैं वो जाएंगे ही। और फिर उस पर ये हुआ कि यहाँ से उठाकर हमेशा DHA में स्कूल्स मौजूद हैं, बिल्डिंग्स मौजूद हैं जो मुख्तस की जाती थी, जहाँ पोलिंग रवायती तौर पर हमेशा होते रहे हैं। DHA के अंदर ही होते हैं। एक वार्ड के कानून ये कहता है कि अगर PP का मतलब है मेरे नीचे 4 सूबाई नशिस्तें आती हैं, वो सूबाई नशिस्त का पोलिंग स्टेशन उसी सूबाई नशिस्त के अंदर ही रखना वाजिब और लाजिम है। कानून के मुताबिक बाहर नहीं फेंका जा सकता। अब इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने पोलिंग स्टेशन यहाँ से DHA से उठा के कोई चरण पिंड में फेंक दिया है, कोई जो है इसी तरह दूसरे यानी दूर दराज इलाकों में फेंका है। हालांकि 1 मील के रेडियस से बाहर नहीं जा सकता, 1 मील का रेडियस, उससे बाहर पोलिंग स्टेशन की कानून इजाज़त नहीं देता। इन्होंने उठा के उसको भी सरे यानी उसको उठा के परे फेंका है, उस कानून को, उस ढांचे को, उस ज़ाब्ते को। इसी तरह उन्होंने देहातों में उठा के फेंक दिए ताकि DHA का वोटर जो है वो हलकान होकर ढूंढता रहे और मिल जाए तो पहले बीवी को वोटिंग के लिए एक जगह जाए, उसके रिवर्स पे उलट पे जाके फिर जाए, फिर गाड़ी वहाँ तक नहीं जा सकती, व्हीकल नहीं जा सकती, 2-2 ढाई मील फिर वहाँ खड़े करके फिर पैदल जाए, चिंची पर जाए, मोटरसाइकिल पर जाए। और मुझे बताएं कि ऐसे में आप क्या वोटर जो है वो इतना